اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی مظفر مرزا۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری اس ویڈیو کو خاص کر آج آخر تک دیکھنا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیز سبسکرائب ضرور کرنا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا، کیونکہ میں بھی آپ کے تعاون کا محتاج ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک اچھی سے اچھی معلومات اور سچ پہ مبنی معلومات پہنچانے کی کوشش کروں، تو اس لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ سو امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے۔ دوستو، اس کے بعد آپ سے جو آج انتہائی اہم موضوع ہے اس پہ بات کروں گا۔ بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب 4 سال کے بعد جب خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر ملک پاکستان میں تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے کچھ لوگوں کی مدد سے، جس میں عدلیہ کی مدد سے، انتظامیہ کی مدد سے اور کچھ بڑوں کی مدد سے ایک اچھا جلسہ کیا ہے۔ اگر سچ کو سچ نہ کہیں تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یہ پاور شو جس طرح بھی ہوا ہے کل لاہور میں، یہ ایک اچھا جلسہ تھا۔ کچھ ٹی وی اینکر اور کچھ نام نہاد صحافی حضرات اس جلسے کو محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسے سے کمپیئر کر رہے ہیں، کچھ اس کو عمران خان کے 2011 کے جلسے سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت کے حالات جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے لاہور میں جلسہ کیا تھا، تو اس وقت پاکستان کی آبادی کا تناسب دیکھیں، لاہور کی آبادی کا تناسب دیکھیں، اور آج اور اس وقت کے وسائل دیکھیں۔ آج لاہور کی آبادی، پاکستان کی آبادی اور جناب قبلہ حضرت نواز شریف اینڈ کمپنی کے وسائل، اور ان وسائل میں ان کے مددگار، جن میں عدلیہ، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ایک بہت بڑی جسے آپ کا پاور کا مینار اس کے پیچھے تھا، اور اس سب کے باوجود کچھ ایسی بیہودہ حرکتیں کی گئی ہیں اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کہ شاید آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی جو ایک بدقسمت واقعہ تھا کس طرح ہوا؟ اس کی ڈیٹیل میں جانا اب فضول ہے، کیونکہ یہ تاریخ کا حصہ بن چکا اور یہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کس طرح پلان ہوا تھا اور کس طرح یہ واقعہ ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے میں کچھ لوگ، کچھ بچے، کچھ جوان، کچھ عورتیں، کچھ مرد، کچھ بیٹیاں، کچھ بیٹے، جو اس وقت موجودہ حکومت کی کسٹڈی میں یا ان کے قید خانے میں ہیں، ان کے کچھ ورثاء بھی ہیں، ان کے والدین بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اور دوستو، اس جلسے کو کامیاب کرانے کے لیے وہ بچے، وہ بچیاں، وہ بزرگ، وہ مرد، وہ عورتیں جو اس وقت جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، جن پہ آج تک کوئی ٹرائل بھی نہیں چلا ہے، جن کو آج تک عدالتوں میں پیش بھی نہیں کیا گیا ہے، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے عزیز و اقارب کو یہ دھمکی دی گئی تھی ایک خاص محکمے کی طرف سے۔ ابھی میں کچھ نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں، ایک خاص محکمے کی طرف سے، کہ اگر یہ سارے ورثاء جلسے میں نہ گئے تو ان کے وہ پیارے جو اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ وہ انجام ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یعنی فاشسٹ ازم کا، ہٹلر کی وہ مثالیں تازہ ہو گئی ہیں۔ یہ سیاست، یہ جمہوریت، یہ ایک شخص کو پروان چڑھانے کے لیے ان بے گناہ لوگوں کو جو جیلوں میں، ان کے ورثاء کو، ان کے لوائکی، ان کے جو والدین عزیز و اقارب ہیں، ان کو سخت ترین دھمکیاں دی گئی تھیں اور برے انجام کے لیے ان کو کہا گیا تھا۔ اس لیے ڈر کے مارے وہ سارے لوگ بھی بے شک خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے، ایک پتلے کی طرح کھڑے تھے، لیکن جلسے میں موجود تھے۔ دوسری طرف پاکستان ریلوے کی تمام انرجیز پنجاب حکومت نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہوئے نواز شریف کے جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے استعمال کر دی۔ تیسرا معجزہ
पंजाब पुलिस और बहुत सारे जो गैर सरकारी अदारे या जिस तरह आप कह सकते हैं पुलिस, रेंजर्स और दूसरे बहुत सारे अदारे, उनके तमाम अफराद, उनके तमाम मुलाजमीन को ये हुक्म सादर फरमाया गया था, चूँकि ये नवाज शरीफ साहब का हुक्म था कि ये जलसा कामयाब करना है, और पंजाब हुकूमत चूँकि नवाज शरीफ की ले पालिक हुकूमत है, तो तमाम मुलाजमीन को, सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन को ये फोर्स किया गया था कि अगर वो जलसे में ना गए तो उनकी नौकरियां खतरे में या उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। सो वो लोग भी डर के मारे जलसे में मौजूद थे। फिर जनाब पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किस तरह किया गया और किसने कराया? नवाज शरीफ साहब के पास पैसे की कमी तो है नहीं, और इनको स्पॉन्सर करने वाले भी जो हैं वो भी तो मिलियनजेयर क्या ट्रिलियनजेयर में है, तो उन्होंने पैसे का भी बेदरेग इस्तेमाल किया। बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिले हैं जहाँ पे लोगों से अगर पूछा गया कि आप नवाज शरीफ को पसंद करते हो, तो उन्होंने यही कहा कि हमें नवाज शरीफ से कोई लेना देना नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हमारी दिहाड़ी नहीं लग रही थी, हमें 1000 रुपया नकद और 2 वक्त की रोटी मिली है, हमारे लिए तो शुक्र है कि ये आया है, हमारी दिहाड़ी लग गई है। ऐसे भी बहुत सारे लोग जलसे में मौजूद थे। इसके बावजूद कुछ जनाब हमारे सहाफ़ी और कुछ एंकर और ख़ासकर जियो टीवी वाले ये शो कर रहे हैं कि ये जलसा बेनज़ीर के जलसे से बड़ा था, उससे बहुत बड़ा था, इमरान खान के जलसे से बड़ा था। तो ये मेरे ख्याल में एक बेवकूफ़ाना हरकत है, जिसे आज के मीडिया के दौर में लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये बनावटी चीज़ें भी असली साबित हो जाएं। दोस्तों, यहाँ इंग्लैंड में बीबीसी न्यूज़ के मुताबिक, उनके तज्जिया नगारों के मुताबिक ये एक कामयाब जलसा था। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें लोगों की तादाद अच्छी खासी तादाद थी और इसे कामयाब जलसा कहा जा सकता है, यही हकीकत है। अब आते हैं जनाब हजरत किबला मौलवी नवाज शरीफ साहब की तकरीर की तरफ। नवाज शरीफ ने ये तो गिनवाया कि उन्होंने मोटरवेज बनाई हैं, उन्होंने एटमी बम बनाया, उन्होंने वो कहा कि वो 9 मई वाले नहीं है, 28 मई वाले हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि ये 28 मई वाले उस पाकिस्तान के पीछे एक बड़ी ताकत थी, उसका नाम था जुल्फकार अली भुट्टो। वो जुल्फकार अली भुट्टो से चल के डॉक्टर अब्दुल कदीर से चलते हुए गुलाम इसाक खान तक पहुंची थी, और खुशकिस्मती से उस वक़्त BIJI के तावन से नवाज शरीफ साहब उस वक़्त हुकूमत में थे। अगर ये ना होते, कोई और होता तो वो धमाका करता। करीबी उस वक़्त के ज़राए शेख रशीद और राजा साहब जो गुजर खान वाले हैं, उनके कहने के मुताबिक नवाज शरीफ उस वक़्त भी धमाके करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसको चंद लोगों ने मजबूर किया था, तो इसने धमाके किए थे। तो ये जो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब ने आपने से जुम्मे लिया है, खुदा की कसम करके कहता हूं कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो ना होता, अगर गुलाम इसाक खान ना होता, अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर ना होता, और बहुत सारे ऐसे गुमनाम मुजाहिद ना होते जो एटमी प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, तो ये एटमी धमाका ना होता। जब नवाज शरीफ को थाली में रख के एटम बम दिया गया तो इसकी टांगें कांप रही थी उस वक्त भी, लेकिन ये धमाका नहीं करना चाहता, इसको इसके आका ने मना कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस वक्त कुछ मुल्क दोस्त अनासर थे जिन्होंने इसे फोर्स किया, उसने ये धमाका किया। नंबर 1, कश्मीर के बारे में जनाब हजरत किबला मौलवी नवाज शरीफ साहब ने पॉलिसी दिया कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अमल करेंगे, यानी कि कश्मीर का मसला अब इनके लिए लंबे अरसे के लिए क्यों में जाएगा अगर ये इक़्तिदार में आ गए। तो इन्होंने कहा कि हम भारत के यानी पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, यानी कि माशियत पर जोर देंगे। और माशियत, इनकी माशियत क्या है? इनका अपना जो इंडिया में इंटरेस्ट है, इनकी अपने जो शेयर्स हैं, जो कारोबार है, उसी पे काम होगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी बगैर वीज़े के पाकिस्तान आया था, इसी तरह लोग वहाँ से जो इनके अपने इंटरेस्ट वाले कारोबारी लोग हैं वो यहाँ आएंगे, ये वहाँ जाएंगे, और कश्मीर का मसला लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत ज़मीन बोस कर दिया जाएगा, यानी कि दफन कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो ये करेंगे, लेकिन ये वो भूल गए कि उन्हीं के एक प्यारे प्यारे भाई, नन्हे मुन्ने से भाई, जोकर भाई हजरत शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने
पाकिस्तान पे हुकूमत की है और उन्हीं के समधी जनाब असाक डॉलर साहब इस मुल्क के बनावटी वजीर खजाना थे। क्या हशर किया उन्होंने, डॉलर का उन्होंने जिक्र किया कि जब मैं छोड़ के गया था तो 160 का था, लेकिन वो ये भूल गए कि जब मुशर्रफ छोड़ के गया था तो उस वक्त तो सिर्फ 60 का था। तो इनके भाई ने डॉलर को 350 रुपये तक लाया और इनके समधी इसाक डॉलर ने डॉलर का क्या हशर किया। महंगाई में अवाम की चीखें किस तरह निकली। ये जो तारीख चल रही है पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिलों के बारे में, इन्हीं के दौर में है जो कह रहे थे कि हमने बिजली बनाई है, लेकिन ये 16 महीनों में इन्होंने अवाम की बिजली का पसीना निकाल दिया। इसका जिक्र नवाज शरीफ करते हुए भूल गए। मुझे दुख हुआ जब उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में कहा कि वो अपने वालिदैन को कब्र में नहीं उतार सके। वो अपनी बीवी के बारे में उन्होंने जब कहा, मुझे मोहतरमा कुलसूम नवाज, मैं खुदा को गवाह रख के कहता हूँ कि मुझे उनसे ज़ाती हमदर्दी थी। वो बहुत अच्छी सुलझी हुई खातून थी, लेकिन मरना तो एक दिन है। नवाज शरीफ साहब ने इसका जिक्र किया, मुझे दुख हुआ, मुझे आंसू आए, मुझे थोड़ा सा मैं जज्बाती हो गया कि अल्लाह ताला ये वक्त किसी को ऐसे वक्त में मुब्तला ना करे। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब और इनके हवारी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ क्या करते थे? क्या असेंबली में ये शख्स और इसके हवारी और किराए के टट्टू इसके एमएलए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी के नाम से नहीं खिताब किया करते थे? क्या इन्होंने मोहतरमा के खिलाफ, उसकी किरदार कुशी के खिलाफ इन्होंने जाजू से पोस्टर और नंगी तस्वीरें नहीं फेंकी थी? नवाज शरीफ एक ऐसा गरगट है जो एक मिनट पहले कुछ और बात करता है और आधे घंटे के बाद जब इसको कुछ इक़्तिदार या कुछ ताकत मिलती है तो ये अपना माजी भूल जाता है। इस शख्स के बायोमेट्रिक में इंतकाम भरा पड़ा। इसने कहा कि आओ सब मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता हूँ, माजी भूलना चाहता हूँ, कुछ यादें हैं जो भूल नहीं सकता, एक साइड पे रख देता हूँ। लेकिन इस शख्स का माजी गवाह है कि ये शख्स इंतकाम लिए बगैर कभी रह नहीं सकता। क्या अशर किया इसने? अभी शेख रशीद का, वो शख्स शेख रशीद जो कभी इसके बूट चाटता था, फिर इसके खिलाफ गया और फिर वो इमरान खान के साथ उसने इताद कर लिया, उस शख्स को जलील कराने के लिए मनीब फारूक के साथ जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अरेंज कराई है, सिर्फ इसको खुश करने के लिए मनीब फारूक ने इंटरव्यू लिया है। और किसी जेल बंदे को भी ये पता चल जाता है कि नवाज शरीफ वो लिखे हुए पेपर जो किसी खास ताकत की तरफ से उसे दिए गए थे, वो पढ़ के शेख रशीद इंटरव्यू दे रहा था। और वो पेपर, वो अदायात किसके कहने पे हुई? ये सिर्फ नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, इसके एजेंडे की तकमील के लिए वो सब कुछ ड्रामा किया गया और लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान में इंसाफ कैसे हो रहा है। और यही इंसाफ होगा अगर खुदा न ख्वास्ता हजरत किबला मोहतरम नवाज शरीफ साहब को दोबारा लाया गया तो। आ तो नहीं सकते, अगर लाया गया तो। ये अभी इक़्तिदार में आए नहीं है और पीटीआई के वर्करों, पीटीआई के लीडरों के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह उनको नामालूम मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जिस तरह उनको 4 हफ्तों के बाद इंटरव्यू देने के लिए सामने लाया जा रहा है और जिस बौंडे तरीके से उन पे प्रेशराइज डाल के दूसरी जमातों में डाला जा रहा है, यही एजेंडा था इस शख्स का। यही ख्वाहिश थी इस शख्स की कि किसी तरीके से पीटीआई को तोड़ा जाए और दूसरी जमातों को कमजोर किया जाए। और इस शर्त को इसके सहूलतकारों ने, जिसमें बहुत सारे अनासर, बहुत सारे पिलर शामिल हैं, उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। और जब इसको यकीन हो गया कि इसकी मुखालिफ जमात पीटीआई को बुरी तरह तोड़ दिया गया है, उसके लीडर को पाबंद सलासल कर दिया गया है, उस पे ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं जिनका ना कोई सर है ना पैर है और उसकी सजाएं अच्छी खासी लंबी हैं। इस शख्स को जब ये यकीन हो गया, उस वक्त इसने पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा। 4 हफ्तों की मेडिकल छुट्टी पे समझो गया था और 4 सालों के बाद उस वक्त वापस आया जब इसके तमाम सियासी जमातों को तोड़ दिया गया है। इस खास कर पीटीआई को
बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया। उनका कोई अब ना ही तो उनका कोई स्पोक्समैन है, ना ही कोई उनका मीडिया पे अपनी पॉलिसी देने के लिए तैयार है, कोई बंदा नहीं छोड़ा। अब जनाब पूरा मैदान खाली, एक्सक्यूज मी। और ये जनाब नवाज शरीफ साहब अपनी फतह के झंडे गाड़ रहे हैं, किसके सर पे? इस्टेब्लिशमेंट के सर पे और कुछ बकाऊ जजों के सर पे। और ये हकीकी फतह नहीं होती है। बहुत सारे दावे नवाज शरीफ साहब ने किए और कुछ उनमें से अच्छी बातें भी थी उसमें से। मैं ये नहीं, जो अगर उसने अच्छी बातें की हैं तो उनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि वो हर वक्त जब भी वो इक़्तिदार में आता है, पहले 1 महीना वो अच्छी बातें करता है, उसके बाद वो सब बातें भूल जाता है। पिछले दौर में जब ये 4 साल तक मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे, तो ये तलाश गुमशुदा का इश्तिहार पाकिस्तान के मीडिया में था। 400 दिन ये गैर मुल्की दौरों पे रहे थे। 122 दौरे इन्होंने सिर्फ इंग्लैंड के किए थे, क्योंकि वहां पे एवन फील्ड और इनकी फैमिली थी। 18 मरतबा 4 सालों में सिर्फ ये असेंबली में आए थे। सब हुकूमत इसाक डार के हाथों चल रही थी। उसी ने मशीयत को तबाह किया था और उसी ने अपने कमीशन एजेंट्स के जरिए इनके लिए सब कुछ पैदा किया था। तो उस वक्त तो ये कुछ ना कर सके। 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला शख्स 4थी मरतबा वजीर आजम का जो उम्मीदवार है वो ये कह रहा है कि वो आया तो पाकिस्तान को ठीक कर देगा। तो 3 मरतबा क्या तू जहन्नम में था? क्या तू मरा हुआ था? अल्लाह ताला ने तुझे 3 मरतबा ये मौका दिया और तू कुछ नहीं कर सका। और नवाज शरीफ की शख्सियत ऐसी है कि इसने अपने माजी से कभी कुछ नहीं सीखा। मुझे अफसोस कैसे कहना पड़ता है कि वो एतजाज हसन कहता था कि नवाज शरीफ मुश्किल में पाँव में पड़ता है और जब अच्छा वक्त आता है तो इसके गले में सरिया पड़ जाता है। ये एक एहसान फरामोश आदमी है। वो इस्टेब्लिशमेंट, वो फौज, वो जनरल ज़ियाउल हक जो इसको एक फैक्ट्री से उठा के वजीर खजाना पंजाब का बना के, वजीर आला बना के वजीर आजम बनाया, फिर एक मर्त उसके बाद तसलसल से IGI बनी, फिर वजीर आजम बना, फिर इसको बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म करके तीसरी दफ़ा इसको वजीर आजम बनाया गया। लेकिन इसने हमेशा जनरल ज़िया की मौत के बाद आने वाले तमाम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसने अपना पंगा, अपने मफादात के लिए पंगा लिया। जब वो इसको रोकते, इसके गलत कामों को, इसके कमीशन खोरी को, इसके मिडल मैन्स को रोकते, तो ये उनके खिलाफ होता और फिर वो जूते मार के इसको बाहर निकाल देते रहे। और 4थी मरतबा भी आफज साहब शरीफ आदमी है, आफज साहब के साथ भी गेम होगी। और मैं अंदर की बात आपको ये भी बता दूं आखिर में कि नवाज शरीफ को लारा तो लाया जा रहा है वजारत उज़्मा का, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को ही लाना है तो उनका वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ कभी नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि इसके लिए अभी टेक्निकली अदालतों से रिलीफ लेना बहुत मुश्किल काम है। वन साइडेड बंदियाल की तरह अगर ये भी वन साइडेड हो गए तमाम अदालतें, तो पाकिस्तान की आवाम के सामने ये हक़ाइक़ को छुपाना मुश्किल हो जाएगा और एक स्पीडी जस्टिस के तहत इसको अदालतों से रिलीफ मिलने वाला नहीं है। और ख़ासकर काजी फाइज ईसा वो शख्स है जिसको ख़रीदना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों ये थी नवाज शरीफ के जलसे की कहानी। कामयाब जलसा था, मुबारक देता हूँ मुस्लिम लीग वालों को, अच्छा शो था। लेकिन जो बातें नवाज शरीफ ने कही उनमें कुछ बातें अच्छी भी थी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी बिलो द बेल्ट जाके नवाज शरीफ ने की। इमरान खान की ज़ात पर इसने तनकीद की कि वो ये तस्बीह को ऐसे अकेले में लड़ाता है, वो पता नहीं बगल मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी नवाज शरीफ को। फिर नवाज शरीफ को ये नहीं कहना चाहिए था कि यहाँ पे कोई मुजरा नहीं है, यहाँ पे कोई ढोल दमका नहीं है, ये ऐसे है वैसे है। सबको पता है कि नवाज शरीफ क्या है और इसके भाई की कितनी शादियां, इसके भाई का क्या किरदार है, इसका अपना क्या किरदार है। तो बहरहाल ये एक अच्छी बात नहीं है कि मैं इस पे बात करूं, अगर करूं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को ये प्लीज़ यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।